Welcome to lecture 27 of HRM lecture series. In today's lecture, we will talk about meaning of compensation or remuneration, purpose of compensation planning, and importance of compensation. So let's start learning. So what is compensation or remuneration? Compensation is a reward for the services provided by the employees. It is the most important element in a human resource management program because for the organization it is the highest single recurring cost, and for the workers it is the financial status and purchasing power that is based on the package that the worker receives. Just as finding and selecting a good employee is important and difficult, we told you earlier when we were talking about recruitment and selection, we said that finding and selecting a good employee is important but is very difficult. Similarly, selecting a compensation plan that meets organizational needs as well as is a good motivator for the worker is equally important and difficult. Selecting a good employee is difficult, yes, but retaining him or her is much more difficult. Therefore, the compensation must not only be adequate, but it must also be attractive, right? Now, the employees receive compensation or remuneration in exchange for their services to the organization, and it can be divided into three parts. The first one is pay, that is the basic salary, the base salary. The second is incentives. This payment is done to the worker if he or she performs beyond expectations. तो जो काम हमने उनसे कहा है उतना करने के लिए तो उन्हें पे मिल रही है. But if they work beyond expectations, then they get incentives as well. And then the third kind of compensation is benefits. These are the non-monetary receipts that workers receive from the organization. So we can say that pay and incentives are monetary receipts while benefits are non-monetary receipts. तो अभी हमें ये समझ आया कि compensation या remuneration क्या है. एक तो ये कि ये वो पेमेंट है जो वर्कर्स को उनके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है. दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग में, क्योंकि एक तो ये सिंगल रेकरिंग कॉस्ट है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और दूसरा अगर वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है विद व्हाटएवर ही और शी इज गेटिंग तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉल्टी है. ठीक है, तो और क्योंकि वर्कर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, परचेजिंग पावर है, वो उसके पैकेज पर ही डिपेंड करती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कर को क्या पैकेज मिल रहा है, क्या कॉम्पनसेशन मिल रहा है, और एक फाइन बैलेंस बनाना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बिटवीन द हाई कॉस्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बेयर एंड द सफिशिएंट compensation that the worker must get, so that the worker is not only obtained but is retained by the organization. ठीक है, तो कॉम्पनसेशन एडिक्वेट भी होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एडिक्वेट तो है बट इफ इट इज नॉट अट्रैक्टिव, chances are that these workers will soon leave us, because whenever they find an attractive package somewhere else, they will definitely go there, राइट. उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटते हैं. ये ब्रॉड कैटेगरी है, बाकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे. एक तो है पे, जो वर्कर को बिकॉज द वर्कर इज वर्किंग एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, तो उसको जो सैलरी मिल रही है वो बेस सैलरी पे के फॉर्म में है. इंसेंटिव्स है इफ द वर्कर इज परफॉर्मिंग अप टू द मार्क और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है कोई भी वर्कर, तो उसको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं.
उसको प्रेज किया जा रहा है, उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और तीसरा है बेनिफिट्स, जो नॉन मॉनिटरी रिसीट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को पे करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ काइंड। और ज्यादातर इसका जो रिलेशन है वो टैक्स लायबिलिटी से होता है कि वर्कर को जब इनकम टैक्स देना होता है तो दीज बेनिफिट्स डोंट फॉल इन परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। तो नॉन मॉनिटरी रिसीट्स दी जाती हैं वर्कर्स को। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। तो अभी तक जो हम कर रहे थे उसी को ही थोड़ा एक बार और रिपीट हम कर रहे हैं। एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन इज अ रेम्यूनरेशन प्लान दैट प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम गारंटीड वेज, जिसको अभी अभी हमने पे बोला, मिनिमम गारंटीड वेज बेस्ड ऑन आवरली रेट एंड एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा आउटपुट। तो अगर वो एक्स्ट्रा काम करे तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट मिले इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, और जो वो बेसिक काम करे उसके लिए उन्हें पे मिले यानी बेसिक सैलरी मिले। दिस इंक्लूड्स द फीचर्स ऑफ टाइम बेस्ड एंड आउटपुट बेस्ड सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल लेटर। टाइम बेस्ड पेमेंट क्या है, आउटपुट बेस्ड पेमेंट क्या है, और ज्यादातर जो रेम्यूनरेशन पैकेज होता है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू। टाइम बेस्ड भी होता है जैसे हमने कहा कि आवरली रेट, और आउटपुट बेस्ड भी होता है यानी जितना वो परफॉर्म कर रहे हैं, जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट करना। तो with this we conclude the introduction of compensation. Now let us proceed towards the next small topic, and this is the purpose or objectives of compensation planning. कॉम्पनसेशन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। वन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड अनदर इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में हम बात कर रहे हैं उन मेन रीजंस की, उन मेन पर्पस की जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को फुलफिल करने होते हैं थ्रू कॉम्पनसेशन प्लानिंग। द वेरी फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट टैलेंटेड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम अच्छे एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए जो फर्स्ट इंडिकेशन होता है, फर्स्ट मेथड होता है कि कैसे वो हमारे यहाँ रिक्रूट यानी अप्लाई करने के लिए तैयार होंगे और कैसे वो हमारे यहाँ काम करने के लिए तैयार होंगे। तो द वेरी फर्स्ट टूल टू अट्रैक्ट talented and competent employees is a good compensation package. तो पहला objective हो गया to attract talented and competent employees. Second primary objective is after attracting talented and competent employees, the second objective is to motivate these talented and competent employees to work better. तो वो अच्छा तो काम कर ही रहे हैं लेकिन और अच्छा काम करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कॉम्पनसेशन प्लानिंग का। सो टू मोटिवेट दीज एम्प्लॉयज, दीज टैलेंटेड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज टू वर्क बेटर। एंड द थर्ड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऑल्दो इट इज लास्ट बट इट इज नॉट द लीस्ट, यानी इट इज इवन मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन दीज टू, इज to retain these talented and competent employees for a longer time. I told you earlier also that recruitment and selection is an expensive activity, है ना। तो जब हम अच्छे वर्कर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट करते हैं वो रिक्रूटमेंट है, और जब हम उन्हें हायर कर लेते हैं दैट इज सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो अपने आप में एक खर्चीला काम है, उसके बाद एक और एक्सपेंसिव एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है, और वो है ट्रेनिंग दीज एम्प्लॉयज, है ना। तो रिक्रूटमेंट में खर्चा किया, सिलेक्शन में खर्चा किया, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग में खर्चा किया, ये सब हमने किया बिकॉज दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बट दिस इन्वेस्टमेंट में बिकम अ डेड cost, a sunk cost, if we are not able to retain these talented and competent employees जिन्हें हमने खर्चा करके रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, ट्रेन किया। if we are not able to retain them, then the purpose is flawed. We are not able to fulfill this purpose, we are not able to serve this purpose कि हम क्या चाहते थे कि अच्छे एम्प्लॉयज हमारे पास काम करें। So the compensation also has a very important objective, and it is to retain these talented and competent employees for a longer time so that we get the full benefit out of
these workers. और जो भी खर्च हमने किया है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है इनके ऊपर, उसकी हम रिकवरी कर पाएं, उसके हम बेनिफिट्स ले पाएं. तो इसको अब हम यहाँ देखें. दिस इज obtaining talented employees, then maintaining them, and last but not the least is retaining them for a longer period. Okay, now let us talk about the secondary objectives of compensation planning. इन 3 के अलावा और भी objectives हैं जो हमें पूरे करने होते हैं compensation planning से, और उसमें से पहला है establishing a fair and equitable wage and salary system. ये बहुत important है कि जो हमारा compensation package हो वो fair भी हो और equitable भी हो, because if our compensation system, our compensation package is not fair or is not equitable, it will definitely lead to dissatisfaction among our workers. और अगर वो dissatisfied हैं, अगर हमारे workers हमारे compensation package से खुश नहीं हैं क्योंकि हमारा compensation package unfair है या non-equitable है, तो they won't perform up to the mark. They won't perform as required by the organization. तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाता है अगर हमारा कॉम्पनसेशन पैकेज फेयर और इक्विटेबल ना हो. तो कॉम्पनसेशन प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी की कैटेगरी में है कि एक फेयर और इक्विटेबल वेज एंड सैलरी सिस्टम एस्टैब्लिश करना. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज to rationalize labor and administrative costs. I told you earlier, labor cost is the single most largest cost of the organization. तो organization को इस एक कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है. हम यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसा बचाना नहीं है. अगर हम कम वेजेस पे करेंगे तो हमारे पास अच्छे वर्कर्स नहीं रहेंगे, और अगर हमारे पास अच्छे वर्कर्स नहीं रहेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे. तो हमें पैसा बचाना नहीं है, लेकिन क्या करना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है. यानी वी मस्ट रैशनलाइज लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी जितना हम खर्च करें अपने लेबर के ऊपर उसका मैक्सिमम बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट करें. ठीक है, तो इसीलिए कॉम्पनसेशन प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो लेबर और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो रैशनलाइज हो, ऑप्टिमम हो, जितना हम खर्च करें उतना बेनिफिट हम उठाएं. ठीक है. Next objective is to have better industrial relationships through trade unions. अब देखिए, अगर हमारा compensation package अच्छा नहीं है, attractive नहीं है, equitable नहीं है, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने अभी आपको कहा कि वर्कर्स डिससैटिस्फाई हो जाएंगे, और अगर वर्कर्स डिससैटिस्फाई हैं तो डेफिनेटली ट्रेड यूनियंस विल बिकम एग्रेसिव. ठीक है, तो अगर हमें ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स के जो यूनियंस हैं उनके साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे बनाने हैं, कॉर्डियल बनाने हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी कॉम्पनसेशन प्लानिंग करें और हम रैशनल तरीके से कॉम्पनसेशन पैकेज, इक्विटेबल और फेयर तरीके से कॉम्पनसेशन पैकेज ऑफर करें वर्कर्स को. ठीक है, so that even trade unions feel satisfied. Okay, and the last is compensation planning helps in improving and boosting motivation and morale of the workers. अब देखिए होता क्या है, जो वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम with the help of compensation package उन्हें incentives देते हैं तो definitely उनका मोरल बढ़ता है. They feel appreciated, they feel acknowledged. तो उन्हें अच्छा लगता है कि उन्होंने ज्यादा काम किया, उन्होंने बढ़िया काम किया और उन्हें उसके बदले इंसेंटिव्स मिले. ठीक है, तो अच्छे वर्कर्स का मोरल बूस्ट हो रहा है. साथ साथ देखिए क्या हो रहा है, ये उन वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए यूज किया जा सकता है जिन्होंने अभी ज्यादा अच्छा काम नहीं किया था. नाउ व्हेन दे विटनेस कि कुछ वर्कर्स, उनके कुछ कलीग्स जिन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया, उनको पे के साथ इंसेंटिव भी मिला, यानी नाउ दे आर ऑल्सो गेटिंग मोटिवेटेड कि हम भी अच्छा काम करें. सो दैट अभी तो हमें सिर्फ पे मिली है, लेकिन अगर हमने भी बाकी उन वर्कर्स की तरह अच्छा काम किया जिन्हें इंसेंटिव्स मिले हैं तो हमें भी इंसेंटिव्स मिलेंगे. राइट, तो अगर कॉम्पनसेशन पैकेज अच्छा है,
लॉजिकल है, रैशनल है, तो इससे मोटिवेशन भी इम्प्रूव हो रहा है और मोराल भी बूस्ट हो रहा है। तो मोटिवेशन उनके लिए जो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे थे उन वर्कर्स के लिए, और जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे उनका मोराल बूस्ट हो रहा है बिकॉज दे आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस. Okay, now the last topic is importance of compensation. Now we are categorizing this importance in three parts. Compensation important hai to the employee, compensation important है to the employer and compensation is also important to the government. तो ये जो तीन कैटेगरीज हमने बनाई इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉय, क्या हो रहा है एम्प्लॉय को अगर कॉम्पनसेशन उसको जो भी वट एवर कॉम्पनसेशन ही और शी इज गेटिंग, इट गिव्स अ पर्पस टू परफॉर्म. रीजन आ रहा है ना, वर्कर को एक रीजन मिल रहा है कि वो क्यों काम करेगा, क्योंकि उसको एक सर्टेन पैकेज ऑफर किया गया है. ठीक है, तो वर्कर गेट्स अ रीजन टू परफॉर्म, अ पर्पस टू परफॉर्म. Second importance is it determines his or her standard of living. So the higher the package, the better will be the standard of living. तो compensation package important है वर्कर के लिए क्योंकि इससे उसका standard of living decide होता है. ठीक है, तो these are the two importances for the employee of the compensation package. नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयर के लिए क्यों कॉम्पनसेशन इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट, कॉम्पनसेशन इज इंपॉर्टेंट टू द एम्प्लॉयर बिकॉज इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट. फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, लेबर कॉस्ट इज द सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हमने अच्छे से कॉम्पनसेशन प्लानिंग कर रखी है तो वी नो बिफोर हैंड कि हमारी कितनी कॉस्ट होने वाली है और उसको हम कहाँ से अरेंज करने वाले हैं. राइट, सो for the employer, compensation plan helps in controlling the cost and it also helps in increasing labor efficiency. क्योंकि मैंने कहा कि जितना हम खर्च अपने वर्कर्स पर कर रहे हैं we must यूटिलाइज देम टू दी फुलेस्ट. हमें ऑप्टिमम लेवल तक उनकी परफॉर्मेंस चाहिए, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में भी कॉम्पनसेशन प्लानिंग हेल्प करती है बिकॉज वी हैव कॉम्पनसेशन पैकेज जिसमें एक बेस पे है, जिसमें एक इंसेंटिव है. तो बेस पे उनके लिए जो सारे उस लेवल पर काम कर रहे हैं और इंसेंटिव उनके लिए जो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं यानी ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं. तो वी आर गिविंग a reason to the workers to perform efficiently with the help of this compensation package. ठीक है, now last is the importance of compensation to the government. गवर्नमेंट को इससे क्या हो रहा है, क्या यूज है गवर्नमेंट के लिए इस compensation का. the compensation helps in determination of national wage policy. डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्कर्स को क्या कॉम्पनसेशन दिया जाता है उसके बेस पर गवर्नमेंट नेशनल वेज पॉलिसी डिटरमिन करती है. ठीक है, बहुत बार हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया मिनिमम वेजेस. जब मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है तो इट हैज टू बी पेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज की मिनिमम वेजेस इतना पे करना है. नाउ government decides minimum wages with the help of the compensation packages by studying the compensation packages of various industries और उसके बेस पर national wage policy determine करती है government. Next is it gives guarantee of reasonable remuneration because it provides a sound foundation for peaceful industrial relations. देखिए क्या हो रहा है कि ये जो compensation package है जिसके बेस पर गवर्नमेंट ने नेशनल वेज पॉलिसी बनाई और अब सारे जो कॉम्पनसेशन पैकेजेस हैं वो इस नेशनल वेज पॉलिसी को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे. यानी बोथ आर इंटर रिलेटेड. डिफरेंट इंडस्ट्रीज के कॉम्पनसेशन पैकेज को स्टडी करके गवर्नमेंट बनाती है नेशनल वेज पॉलिसी और जब नेशनल वेज पॉलिसी डिक्लेयर हो जाती है तब सारी इंडस्ट्रीज उस पॉलिसी को ध्यान में रखकर अपने कॉम्पनसेशन पैकेजेस बनाती हैं. तो ये इंटर रिलेटेड है और कौन पहले आया कौन बाद में आया जैसा सिस्टम नहीं है. वन डिपेंड्स ऑन द अदर. ओके, एंड दिस
गारंटी ऑफ रीजनेबल रेम्यूनरेशन, क्योंकि जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, तो दिस इज द गारंटी ऑफ रीजनेबल रेम्यूनरेशन. नाउ दिस गारंटी प्रोवाइड्स अ साउंड फाउंडेशन फॉर पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस. देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके मिनिमम वेज पॉलिसी डिक्लेयर करती है, जिसमें इन्फ्लेशन भी हो सकता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, या हम बात करें कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या पे किया जा रहा है, उसको ध्यान में रख के. तो जब इन चीजों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस डिक्लेयर करती है, तो एक तरह से गवर्नमेंट गारंटी दे रही है वर्कर्स को कि उन्हें कम से कम इतने वेजेस तो मिलेंगे ही. और जब इस तरह की गारंटी गवर्नमेंट से आती है, लॉ बनता है और सारी इंडस्ट्रीज को ये फॉलो करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द कंट्री. और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, अगर हम ये चाहते हैं कंट्री का जीडीपी बढ़े, तो दिस पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर इंडस्ट्रीज में अनरेस्ट है, अगर वर्कर्स खुश नहीं हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर डिसग्रंटल्ड, दे आर एजिटेटेड, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस पे. और अगर इंडस्ट्रीज में ऑपरेशन डिस्टर्ब होते हैं, तो डेफिनेटली जो कंट्री का जीडीपी है उस पर असर पड़ता है. तो गवर्नमेंट का ये फोकस है कि मिनिमम वेजेस वो डिक्लेयर करें ताकि पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस बने रहें. ठीक है. एक चीज और, मैंने बहुत शुरू में एक बात बोली थी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव है. तो ऑल परवेसिव जब हम कहते हैं, इसका मतलब है कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मेजर पार्ट. चाहे आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें, सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में तो है ही ह्यूमन रिसोर्स की बात, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में भी अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स ही मैनेज हो रहा है. ठीक है. और हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाने हैं, तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को सैटिस्फाइड रखना पड़ेगा. राइट. तो अल्टीमेटली हमें ये समझ आ रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, दिस इज एन ऑल परवेसिव एक्टिविटी जो हर मैनेजर को करनी पड़ती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो या ना हो. लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स के साथ वो डील कर रहा है, जो कि कर ही रहा होगा, तो डेफिनेटली उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करना ही पड़ता है. ठीक है. विद दिस वी कंप्लीट आवर दिस discussion on compensation, and we'll continue with further topics of compensation in our next lecture.